हुआ नहीं। अभी आ रहा है ना? हाँ Okay, so this is 16 to the base 10 minus this is 16 plus 8 is 24 plus 26 plus 2 is 26. हाँ? तो ये अभी हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं हम इसका हमें आंसर क्या मिलता है। रूल्स हम वही फॉलो करेंगे। 1 0 0 0 0 हाँ माइनस 1 1 0 1 0। ठीक है, एज यूजुअल वी स्टार्ट विद द LSB bit only. So 0 minus 0 is 0. Next is 0 minus 1. Now 0 minus 1, here we write the difference and here we write the borrow. The lavender color box is the borrow box and below the last block is the difference, that is the answer block. So 0 minus 1, difference is 1 and borrow is 1. Okay. Now first we will subtract these two. 0 minus 0 is 0. Again, next उसका आंसर आता है 0. Now 0 minus 1 we do. So 0 minus 1, difference is 1, borrow is 1. Okay. उसके बाद में now we do over here 0 minus 1, difference is 1, borrow is 1. Now we do this 1 minus 1, this is 0. Next 1 minus 1, these two when we subtract, it gives us 0. Now 0 minus 1, difference is 1, borrow is 1. Okay, so this is the answer what we get. Now if you look at 16 minus 26, ideally the answer is minus 10, but we are not getting that answer. We are getting a different answer. Yes or no, all of you? It is not a direct answer. Because this is not 10, na? This is something else only, na? हाँ कि ना? यस मैम। हाँ, तो इसके लिए ये जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मेथड है, इट डज नॉट सपोर्ट सब्ट्रैक्शन फॉर स्मॉलर माइनस बिगर नंबर. Bigger minus smaller, it will give you a valid answer where the answer is correct with respect to the decimal values also. But if you do smaller minus bigger, it will not give you the answer which will be actually the answer what is expected. For that reason, we have ones complement and twos complement method of subtraction. So ones complement and twos complement method of subtraction is used and discovered so that we can have successful subtraction of smaller number minus bigger number. ओके, बट जब भी एग्जाम्पल्स आएंगे तुम्हें पूछे जाएंगे एग्जाम में अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के, तो वो दोनों तरफ से रहेंगे. इट विल बी फॉर बिगर माइनस स्मॉलर एज वेल एज स्मॉलर माइनस बिगर. कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो अगर Yes, मुझे ma'am. ये आंसर लिखना है तो मैं ये आंसर कैसे लिखूंगी? 1 0 0 0 0 to the base 2 minus 1 1 0 1 0 to the base 2 is 1 0 1 1 0 to the base 2 with borrow, final borrow as 1, which indicates that that is not a real answer. Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. Coming to next, let's say we are doing decimal division, decimal subtraction direct. So 1 0 1 0 dot 0 1 0 to the base 2 minus 1 0 1 1 dot 0 1 1 to the base 2.
So to subtract something like this, decimal subtraction we are considering. So first we will write down the numbers 1010 dot 010. Next number 0111 dot 011. We start always with the LSB position. Okay. So okay. So this comes as, we start with the LSB position. 0 minus 1 is what? Difference is 1. Okay. And borrow is 1. अभी ये 1 माइनस 1 के बीच में होगा. अभी मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉपरली लिख के दिखा रही हूँ. क्यों लिख के दिखा रही हूँ? ताकि तुम्हें वो चीज समझ में आए. बट ये ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्टली भी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो. जैसे कि अभी मैं मेंटल कैलकुलेशन करने वाली हूँ. ये पहले तो मैं 1 माइनस 1 लूंगी, उसका वैल्यू आता है 0. फिर 0 माइनस 1 का आता है डिफरेंस इज 1, बोरो इज 1. वापिस 0 माइनस 0, डिफरेंस इज 0. 0 minus 1, difference is 1, borrow is 1. Understood now what I am trying to do? Yes, ma'am. ये जो पहले लिखा था मैं प्रॉपर पेयरिंग अप करके सब्ट्रैक्शन वैसे लिख के बताओ आप सब लोगों को. No, ma'am, we are getting. हाँ, you are understanding ना? Okay. Okay, okay. Thank you. So now next one, the next 0 minus 1, यहाँ पे difference is 1. हाँ, borrow is 1. फिर पहला वाला नंबर 1 माइनस 1 आंसर आता है 0. नेक्स्ट नाउ 1 माइनस 1 आंसर इज 0. 0 माइनस 1 डिफरेंस इज 1, बोरो इज 1. देन 1 0 माइनस 1 डिफरेंस इज 1, बोरो इज 1. 1 माइनस 1 डिफरेंस इज 0. देन नेक्स्ट 1 माइनस 0 डिफरेंस इज 1. 1 माइनस 1 योर डिफरेंस इज 0. Understood all of you? So that is your answer. So answer for this is 0010.111 to the base 2. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now I am giving you one to solve. Yes, ma'am. तो अभी ये फोर्थ वन मुझे सॉल्व करके बताओ तुम लोग. ये चलो सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ. फोर्थ वन. मैम आ गया आंसर. आ गया. हाँ बोलो क्या है आंसर. 1100.010. Is everybody getting the same answer? With borrow 1. Yes. Yes, ma'am. Very good. If everybody is getting the same answer. Okay. Shall I move on to the next topic?
Students, Yes, ma'am, you can. Yes, ma'am. now one's complement, two's complement method देखने से पहले we will see what is sign magnitude representation and what is one's complement and two's complement of a given number. तो sign magnitude representation क्या होता है वो हम देखने वाले हैं. Just a moment, all of you. Two minutes. स्क्रीन फ्रीज हो गया था मेरा टैब का. ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. नाउ जैसे बाइनरी डेसिमल नंबर्स में हम साइन कैसे लिखते हैं कि अगर मुझे 59 इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है, मुझे उसको -59 दिखाना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ डू आई डू इट? माइनस, by putting a minus sign dash in front of the number. That is how I represent -59. Okay, but this is not the way how binary numbers are represented. Binary numbers sign के साथ represent नहीं होते हैं. It is represented by a bit which is called as sign bit. ठीक है, which is called as sign bit. ये जो साइन बिट होता है, इट इज ऑलवेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द गिवन नंबर. साइन बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द गिवन नंबर. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या है? जो एमएसबी बिट होता है वो वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, सो द एमएसबी बिट basically most significant bit of the binary number is the sign bit in a sign magnitude representation. तो जब भी हम बाइनरी नंबर्स को साइन दे के रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है. तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला वाला जो बिट रहेगा उसे हम साइन बिट कहेंगे. अंडरस्टूड नो ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्टूडेंट, Ma'am, can you repeat? हाँ मैं रिपीट करूंगी.
अभी मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आएगा. लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल. Represent -9 to the base 10 in SM representation. साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है. SM रिप्रेजेंटेशन. तो अभी ये जो -9 है, 9 का पहले हम वैल्यू लिखेंगे बाइनरी में. 9 to the base 10 in binary is what? 1001. That is clear to everyone? Is that clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. yes, हाँ. Yes, ma'am. Now अभी हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है ना बाइनरी में, तो प्रॉपर जो वे है बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का वो कुछ तरह से है. नंबर मैम आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. अभी ठीक है. मैं पूरा नेटवर्क जोन में बैठी हूँ. इसके पहले भी मैंने 2 लेक्चर लिए. अभी ठीक है. अभी yes, Yes, विंडो ma'am. के पास भी बैठी. हाँ. ओके. सो नंबर्स इन बाइनरी आर represented in form of 4 bits, that is groups. हाँ. तो आइडर तुम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर को, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 12 बिट्स में, 16 बिट्स में एंड सो ऑन. यानी कि 16 के बाद 20 आएगा, 24 आएगा एंड सो ऑन. ठीक है. तो 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी बाइनरी नंबर को, या फिर 8 बिट्स में. 5 बिट 6 बिट नंबर नहीं होता है, हमेशा वो मल्टीपल्स ऑफ 2 में ही जाएगा. 4 बिट, 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट एंड सो ऑन. ठीक है. इसके पहले 2 बिट भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. तो अभी ये 9 रिप्रेजेंट करने के लिए चारों बिट्स ऑक्यूपाई होंगे. तो मैं साइन बिट किसे दूंगी, बिकॉज साइन बिट हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा. तो पहले मैं 9 को 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करूंगी. हाँ. रिप्रेजेंट 9 to the base 10 in 8 bit representation. बिकॉज उसने चारों बिट्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं अपना वैल्यू दिखाने के लिए. तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में 9 कैसे दिखेगा? 0 0 0 0 1 0 0 1. बराबर. ये समझा सब लोगों को? Yes, ma'am. yes, अभी इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाला बिट है. तो इसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे साइन वैल्यू. हाँ. तो प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? ये जो साइन बिट है, साइन बिट विच इज कॉल्ड एज एस बिट, अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव होता है, और अगर ये 1 है तो नंबर नेगेटिव होता है. ठीक है. तो अगर मुझे अभी -9 to the base 10 represent -9 to the base 10 in SM representation, that is sign magnitude representation. हाँ. मैम आपका वॉइस ब्रेक हुआ. So if I have to represent -9 in sign magnitude representation, this MSB will become 1 because I have to represent minus, and other bits will remain the same. So -9 to the base 10 in SM is what? 1 0 0 0 1 0 0 1 to the base 2. That's the answer. Now is this clear to everyone? What do you mean by sign bit? समझ में आया सब लोगों को?
Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अभी ये क्या आया, ये -9 आया। हाँ, अभी यही -9 को हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा उसका बेसिक वैल्यू कि वो क्या है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यानी कि एडिंग साइन बिट as the MSB bit with appropriate टाइप, यानी कि 0 या 1 डाल के वेटेज के हिसाब से। वंस कॉम्प्लीमेंट, 1C का मतलब क्या है ना, कॉम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी नंबर। कॉम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी नंबर का मतलब क्या है, 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। नेगेशन, अपोजिट, कॉम्प्लीमेंटिंग अपोजिट। एंड 2C का मतलब क्या है, 1C निकालो बाइनरी नंबर का और उसमें 1 ऐड करो LSB पोजीशन पे, LSB बिट पोजीशन पे, जो तुम्हें वैल्यू मिलेगा वो रहेगा 2C। तो ये हम अभी मेथड्स देखने वाले हैं। तो आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल अहेड, मैं सेम एग्जांपल फॉरवर्ड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, represent -9 to the base 10 in 1C form. Next, represent -9 to the base 10 in 2C form. अभी हम सिर्फ 1C 2C क्या है ये पढ़ रहे हैं, एक्चुअल मेथड इसके बाद में आएगा। हाउ डू वी डू सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1C एंड 2C मेथड, ठीक है। तो नाउ पहले तो ये जो 9 to the base 10 है उसमें बाइनरी वैल्यू क्या आता है, 1001। ओके, दैट इज द बाइनरी वैल्यू। तो therefore in 8-bit form this 9 to the base 10 will become what, 00001001 to the base 2। अभी हाँ, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, -9 to the base 10 क्या होगा, ये जो MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो है तुम्हारा S बिट, साइन बिट, ये वाला, ठीक है। तो वो बन जाएगा 1 बिकॉज हमें माइनस रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब वैल्यूज वैसे ही होंगे। सो दैट बिकम्स योर -9। एंड इन 1C -9 to the base 10 क्या बनेगा, ये जो वैल्यू हमें मिला है उसे हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये 1 जो है 0 बन जाएगा, ये जो 0 है ये 1 बनेगा, ऐसे ही अपोजिट आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. समझ में आया ना सबको अभी? यस मैम। ओके, वही अगर मैं कंटिन्यू करूंगी 2C के लिए, अगर मुझे -9 to the base 10 2C में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, नाउ -9 to the base 10 into C will be, so first you will write -9 to the base 10, sorry सिर्फ 9, पहले बाइनरी वैल्यू फाइंड करो, 1001 to the 2। In 8-bit form 9 to the base 10 is what, 00001001, ठीक है। नाउ इन SM फॉर्म -9 to the base 10 क्या होगा, ये जो S बिट है
वो 1 बन जाएगा माइनस के वजह से, बाकी सब वैसे के वैसे ही होंगे। इन 1C फॉर्म -9 टू द बेस 10 क्या होगा, अभी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नंबर। कॉम्प्लीमेंटिंग द नंबर मीन्स कन्वर्टिंग 1 to 0 एंड 0 to 1। तो ये 1 0 बन जाएगा, 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बन जाएगा, 1 1 1 0। हाँ, अभी 2C कैसे मिलता है, LSB पोजीशन में, यहाँ पे ये वाला LSB पोजीशन है तुम्हारा, इस पे हम 1 ऐड करते हैं, सिंगल 1, हाँ सिंगल 1। तो ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 2C कहलाएगा। तो 0 + 1 is 1, ये 1 ही रहेगा, ये 1 0 1 1 1 0। तो ये जो अभी हमें नंबर मिला है, दिस इज इन 2C फॉर्म -9 टू द बेस 10। So therefore 2C form of -9 to the base 10 is 0 1 1 1 0 1 1 1 to the base 2. That is your answer. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसी, हाँ बोलो बेटा, To बोलो बेटा। complement representation, we have to follow one complement representation again for this also, like that step of one complement representation. 2C के लिए ना, हाँ मैम, फिर से रिपीट करना पड़ेगा 1C का स्टेप। हाँ हाँ, बिकॉज क्या है Without बेटा, that we can 2C, yes 2C cannot be found out up till you find 1C। 1C में अगर तुम LSB में बिट 1 बिट ऐड किया, बाइनरी 1 ऐड किया LSB पोजीशन में 1C के, तो तुम्हें 2C मिलता है, वरना नहीं मिलता है। सो इट इज अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन, दैट इज हाउ आई हैव टॉट यू ऑल्सो। okay ma'am. समझा? Yes ma'am. ओके, अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ। Ma'am, So, can you show let's- the last slide for 1 second? I want to take screenshot, ma'am. अरे क्यों, मैं डालती हूँ ना, ये अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ। Okay, ma'am. I will put it now। नेक्स्ट लेते हैं, कुछ अलग नंबर लेते हैं। रिप्रेजेंट -18 टू द बेस 10 इन 1C फॉर्म, और वही करते हैं हम, और कुछ और एग्जांपल लेती हूँ। चलो, रिप्रेजेंट, या फिर वही लेती हूँ। ठीक है, -18 टू द बेस 10। तो पहले तो आपको 18 का बाइनरी वैल्यू फाइंड करना होगा कि व्हाट इज 18 टू द बेस 10 इन बाइनरी। तो बाइनरी में वैल्यू आता है 16 इज 1001 बराबर, 16 + 2 इज 18, 5 बिट फॉर्म में आता है, राइट। बट जब भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी बाइनरी नंबर, इट कैन नॉट बी इन एनी बिट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि 3 बिट में किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया, किसी को हमने 6 में रिप्रेजेंट किया, किसी को 7 में रिप्रेजेंट किया, ऐसे नहीं चलेगा। इट हैज टू बी ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 2। मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर in 2-bit form, or in 4-bit form, or in 8-bit form, 12-bit form, 16-bit form, 20-bit form, and so on। 4 के ग्रुप के हिसाब से 2-bit भी नहीं होता है, इट इज 4-bit। अंडरस्टूड ना? सो अभी ये 5 का 8 बनेगा। सो इन 8-bit form 18 to the base 10 will become, पहले ये नंबर प्रॉपरली लिख लो, ये ऐसा है 5 बिट के फॉर्म में, तो इसके आगे सब जीरोस बन जाएंगे। और हम ये जो MSB बिट है इसका, हम इसे S बिट कहेंगे, साइन बिट। therefore in SM representation -18 to the base 10 is what, S बिट 1 बनेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और अगर हमें 1C फाइंड करना है -18 का, तो 1C क्या होगा, हम ये नंबर को कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो SM रिप्रेजेंटेशन में हमें मिला। 0 becomes 1, 1 becomes 0, 1 1
0, 1, 1, 0. So this becomes your 1C representation of minus 18. Understood all of you? Yes, ma'am. वैसे ही अगर मुझे 18 to the base 10 2C फॉर्म में करना होता तो मैं करती थी मैम एसएम में आप एमएसबी विथ पे ऐड नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं ना 0 1 से। yes I'm not adding, yes I'm replacing, yes तो तो उधर अगर ऑलरेडी 1 है तो हम क्या करेंगे? किधर हम नया सेट लेंगे क्या बीच में? हाँ यस वेरी गुड हम नया और 4 बिट का सेट लेंगे। अभी वो मैं नेक्स्ट तुम्हें जो प्रॉपर क्वेश्चन दिखाऊंगी ना उसमें बताऊंगी मैं। हाँ क्वेश्चन समझा ना तुमको मैं क्या बोल रही हूँ? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये 18 वाला भी ये 5 बिट फॉर्म में हो गया ना? हाँ ये जो प्रॉपर 18 मैंने यहाँ पे लिखा ना 5 बिट फॉर्म में 10010। बट आपने बोला था 5 बिट यूज नहीं कर सकते ना, 5 और 6 बिट। हाँ तो इसके लिए मैंने 8 बिट में उसको नीचे रिप्रेजेंट किया ना। ओके तो हम ओनली 18 में भी 5 बिट में मतलब फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, फिर नीचे आके चेंज करना पड़ेगा उसको। नहीं समझा मुझे तुम्हें क्या पूछना है बेटा। मतलब 18 जब लेते हैं ना तभी भी उसको मतलब 5 बिट में रखा तो चलेगा कि उसको भी मल्टीपल्स के फॉर्म में मतलब 4 बिट या 8 बिट में रखना पड़ेगा तभी भी? नहीं 8 बिट में रखना ही पड़ेगा। तुम्हें जो नंबर्स मिलेंगे वो सब नंबर्स को तुम्हें आइदर 4 बिट और 8 बिट और 12 बिट और 16 और 20 में ही करना पड़ेगा। ओके अंडरस्टूड? समझा क्या? यस मैम। तो अभी ये -18 टू द बेस 10 इंटू 2C फॉर्म विल बी पहले तो -18 माइनस में is 10010 to the base 2. Now in 8-bit form, 18 to the base 10 is 00010010. In SM, -18 to the base 10 will become 10010010. वैसे ही in 1C -18 to the base 10 क्या बनेगा इसका अपोजिट 10110110। अभी ये 1 से मिलने के बाद इसके LSB बिट जो है लास्ट पोजीशन उसमें 1 हमें ऐड करना है ताकि हमें 2C मिले। सो व्हेन द LSB बिट of 1C is added with 1, the answer what you get is 2C, 2's complement of the given binary number. So 1 plus 1 is 0, carry 1. 0 plus 1 1। मैं ये कैरी को इरेज कर देती तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 0 plus 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 0 1, 1 1 0 1 1 0. So this is in 2C -18 to the base 10. Okay, so therefore 2C form of -18 to the base 10 is 0110 1110 to the base 2. हेलो मैम। बोलो। मैम आपने बोला उसको अपन 4 8 और 12 और 16 में कर सकते हैं राइट? तो ये 9 वाले में वो 4 बिट में था तो इसको 8 बिट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें वो जो 4 बिट में अगर था तो उसके आगे हमें साइन बिट भी तो डालना है ना। तो साइन बिट आने के बाद वो 5 बिट का हो जाता है ना अगर हम 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसके लिए Okay. हमने उसको एक्सटेंशन दिया, ठीक है। अभी तुम्हें और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी मैं इसका प्रॉपर सम करती हूँ, ठीक है। प्रॉपर सम आई एम गोइंग टू डू। फाइंड वन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग। हाँ, प्रॉपर सम है ये। so find 1c, one's complement of, find 1c of minus 1000 to the base 10, ठीक है। 1000 to the base 10। तो पहले तो आपको 1000 को कन्वर्ट करना होगा। अभी तो मैं सिंपल नंबर्स ले रही थी, ओके। वो सिंपल नंबर्स में क्या हो रहा था, सिंपल नंबर्स तुम्हें डायरेक्टली बाय हार्टेड है तो वो लिखना इजी हो रहा था। अभी 1000 का वैल्यू बाइनरी में हमें पता नहीं है, तो पहले तो हमें डेसिमल टू बाइनरी अप्लाई करके मेथड उसको कन्वर्ट करना होगा, ओके। सो फर्स्ट कन्वर्ट 1000 टू द बेस 10 इन बाइनरी फॉर्म। तो कैसे आएगा मेथड, 1000 को हम डिवाइड करते जाएंगे बाय राइटिंग डाउन द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 क्वोशंट इज 500, रिमाइंडर 0। 500 डिवाइडेड बाय 2 250, रिमाइंडर 0। 250 डिवाइडेड बाय 2 125, रिमाइंडर 0। 125 divided by 2 62, remainder 1। 62 divided by 2 31, remainder 0। 31 divided by 2 15, remainder 1। 15 divided by 2 7, remainder 1। 7 divided by 2 3, remainder 1। 3 divided by 2 1, remainder 1। 1 divided by 2 quotient is 0, remainder is 1। Is that clear to everyone? If I have made mistake, please let me know. I hope this is you have understood what I have written. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the MSB Yes, ma'am. position. Numbers taken in opposite order. This is the LSB position of the number. Okay. So therefore, now we will represent 1000 to the base 2 is, now write down 1 1 1, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5 0 1 0 0 0, बराबर लिखा। हाँ, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बिट रिप्रेजेंटेशन है। Now is 10 bit representation allowed in sign magnitude No, representation? No. So therefore now representing 1000 to the base Ma'am, 1000 2, to the base 10 ना? 10 बराबर। यानी कि ध्यान में हो तुम ना, लेक्चर में हो, भटकती आत्मा नहीं हो, बराबर। मैं इसे जानबूझ के करती हूँ ताकि तुम लोग मुझे समझ में आए कि तुम लोग अलर्ट हो कि नहीं हो। नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं करती हूँ, ये गलती से हो गया, बट ऐसी मैंने मौके पे चौका मारा, ठीक है। So now representing 1000 to the base 10 in 12 bit representation। हाँ, 12 bit representation। तो कैसे आएगा, अभी प्रॉपर लिखो इसे। 0 0 0 1, गैप छोड़ो बीच में, 0 1 1 1 एंड 1 1, राइट। तो 12 बिट में हम यहाँ पे 2 zeros ऐड करेंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ग्रुप ऑफ 4 के हिसाब से हम लिखेंगे उसे। समझा ना सब लोगों को? Yes, ma'am. ma'am. Now we go for now 1C। 1C नहीं रहे, पहले तो हम इसको साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे।
Now, in SM form, minus 1000 to the base 10 is, अभी ये जो है ये S बिट बन जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो वो बनेगा 1, बाकी सब बिट्स वैसे ही होंगे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? बिकॉज वो माइनस है. Yes, ma'am. एंड इन 1C फॉर्म ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0. I hope this is clear to everyone. Yes, ma'am. समझा ना सब? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So just a moment. हम इसको 2C में कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ, मीन्स अगर उसको 2C में अगर तुमको पूछा है, देन यू विल कन्वर्ट दैट इनटू 2C. यू हैव टू